Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to talk about Aries Ascendant and how the month of September 22 is going to pan out for the Aries Ascendant people. For the Aries Ascendant people, the Ascendant Lord is Mars and it is going to pass through the second house of family, wealth, that is self-earned, as well as speech. Now this Mars has transitioned into the Taurus sign last month and it is going to remain stationed here till 15th of October. Whenever first house lord passes through the second house, it indicates very clearly that you are going to see a substantial income if you are involved in the businesses that are indicated by Mars. So people who are in the business of real estate or properties, chemicals, petrochemicals, they will see a substantial rise in their income till the time Mars is passing through their second house, and they will also see income from the significators where the dispositor of Mars is located. So since Mars is passing through the sign of Venus and Venus is currently going to pass through the fifth house, so all those people who are in education will also see a jump in their income in the month of September. Whenever first house lord is posited in the second house in the birth chart, then you will see a lot of such people born in very rich households. They usually don't see any shortfall in income as far as their family is concerned. So family wealth or the wealth of their ancestors is always there with them if the first house lord is in the second house in the birth chart. This time it is passing through the transit, so the situation will remain temporary, but the cash flow will not be denied for Aries ascendant people, and the best time for the Aries ascendant people to earn this cash flow will be between the 24th to 30th of September. So last week of September will be very beneficial as far as cash flow is concerned. Now let us talk about Saturn and its impact on the workplace. Saturn currently is in the retrograde motion and is in the house of profession. So till the time Saturn is posited in this house, that is from 12th of July to 16th of January 2023, a lot of workload and stress will be continuously seen on the work front. Saturn will make you work extremely hard in the work sphere, and many time people will have a thought that they should leave their job or profession during this time. But my advice would be to continue to slog, not to give up, because Saturn is trying to test your skills and your patience at this point of time. And after January 23, when it moves to the Aquarius, its own sign, and a very beneficial house because this is an 11th house of gains, these people who do not give up at this point of time will see the rewards coming and they will be able to reap the benefits of all the hard work that they are doing in the next 6 months. We will also look at the fifth house lord. Fifth house lord for Aries ascendant is Sun, and it is going to pass through its own sign till 16th of September. And after that, it will move to the sixth house in its sign of Mercury, which again is the friend of Sun. But till 16th of September, when the fifth house lord Sun is posited in its own house, and it is also going to receive the fourth aspect from Mars. What it would mean is that the opportunities from earning from the speculation will be very high in the first half of the month. And in the second half, when Sun moves in the sixth house, it will again get aspected from Jupiter. So Jupiter will cast its seventh aspect on Sun, and therefore this whole month of September is going to be extremely fruitful for people who are in the speculation business. So if you're an Aries ascendant people, look out for some good opportunities in the month of September. You will definitely see the benefit. For the students, the second half of the month again will be very fruitful because Jupiter is the significator of education and it will be looking at the fifth house lord. So for students, 17 to 30th September is going to be a very good time from the perspective of education. We will also look at Venus. Venus is the owner of self-earned wealth, family, speech, as well as seventh house of business, partnership, and spouse. Venus will remain in the fifth house in Leo till 23rd of September, and then we'll move to Virgo on 24th of September. So till 23rd September, all those who are involved in family owned businesses will see a very good time. This is also a good time for romance and cultivating a new relationship, and the best days for beginning a relationship in September are 9th and 10th of September and 23rd of September. So post 23rd September, Venus will move to 6th house in Virgo sign,
where it will start getting the conjunction with Mercury and Sun, because Sun will also move prior to Venus in this house. Venus is also the seventh house lord, so seventh house lord in the sixth house would mean negation of the seventh house. So tensions in marriage or relationship will start to surface, though they will not rise to very high levels due to the protection they are going to get from the aspect of Jupiter. But Aries ascendant people need to watch out for the last week of September as far as relationships are concerned. So prior to 23rd September, the time will be very good, but from last week of September, some things may not start to work out. Mercury is the owner of sixth house as well as third house for Aries ascendant people and will be posited in the sixth house, and it will pass through its own sign. Again, Mercury will be getting the benefic influence of Jupiter throughout the month of September. The good part about this placement of Mercury is that it is also forming a trine relationship with Saturn. So people who are in the jobs that are governed by Mercury, that is, they are into communications, printing, public relations, writers, and all the commission based job over which Mercury has its domain, they are going to find a very fruitful time in the month of September. All these people will have excellent time on the job sphere. Ketu is stationed in the seventh house for Aries ascendant people. This is going to make you disconnected from your spouse. It will also mean that differences will arise with your spouse or your partner due to change in the perspective. Your spouse will continue to venture towards spiritual or religious side, whereas Rahu stationed in the first house would mean you will continue to have a huge drive towards the materialistic side, because the first house Rahu fuels ambition, and people born with Rahu in the first house always rise high in life by using any tactics possible. So you will find people with Rahu in first house to be very good in politics, and Rahu fuels insane amount of ambition in a person, which sometimes also lead to their downfall, because this Rahu always thinks of grabbing power and sometimes it backfires on you. Now, there are also certain dates when person needs to be very, very careful. These are the dates when moon passes through your 6th, 8th, and 12th house. So, for Aries ascendant people, the days to watch out are 2nd and 3rd of September, 11th to 12th of September, and 25th to 26th of September. These are the 6 dates when Aries ascendant people need to be very careful. Overall, this is a very good month for Aries ascendant people, especially those who are engaged in the businesses that are indicated by Mars and Venus, as I have mentioned earlier in the video, as well as all the speculators. So if you have liked my video, please do subscribe to my channel, and thank you very much for watching. नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानने का प्रयत्न करेंगे कि मेष लग्न वालों के लिए सितंबर 2022 का महीना किस तरह कैसे साबित होगा। मेष लग्न वैसे भी एक बहुत अच्छा लग्न होता है, क्योंकि मेष लग्न में प्रथम भाव में और दशम भाव दोनों में क्रूर राशि पड़ती है, और अगर मंगल और शनि का प्लेसमेंट आपकी लग्न कुंडली में बहुत अच्छा हो तो ऐसे लोग बहुत ऊपर जाते हैं, बहुत साधारण दर्जे से शुरुआत करके भी। अब एक नज़र हम लोग लग्नेश पे डालते हैं। लग्नेश मेष लग्न वालों के लिए मंगल होते हैं, जो कि द्वितीय भाव से भ्रमण करेंगे। यहाँ पर मंगल पिछले महीने अगस्त में एंटर हुए थे और ये 15 अक्टूबर तक यहीं पर विराजमान रहेंगे। जब भी लग्न भाव का स्वामी द्वितीय भाव से गुजरता है तो व्यक्ति पर धन की बरसात होती है। तो यहाँ पर अगर आप मंगल से जुड़ा हुआ व्यवसाय करते हैं, यानी प्रॉपर्टीज, जमीन जायदाद, मकान से रिलेटेड बिजनेसेस या सर्विस में हैं, या फिर आपका पेट्रोकेमिकल्स या केमिकल्स के साथ कुछ संबंध आता है, स्पेशलिटी केमिकल्स के साथ, या फिर किसी भी तरह के आग बुझाने के या आग से रिलेटेड व्यवसाय में आप हैं, तो भी ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा पैसा कमाने की दृष्टि से। अब मंगल जिस राशि से गुजर रहे हैं वो राशि स्वामी भी पंचम भाव से गुजर रहा है, तो जितने भी लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी पैसे का अच्छा माहौल बनेगा। द्वितीय भाव का स्वामी पंचम से जाना, यानी कि आपको स्पेक्यूलेशन से भी अच्छा लाभ होगा इस महीने में, लेकिन वो शुक्र की हम जब बात करते हैं तब डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर मंगल आपको अच्छा धन देता हुआ जाएगा जब तक वो यहाँ बैठा है। तो 15 अक्टूबर तक पैसे की दृष्टि से मेष लग्न वालों के लिए काफी अच्छा समय है। और अगर हम सितंबर के अंदर बात करें तो जो लास्ट वीक है सितंबर का 24 से 30 सितंबर, उसमें सबसे बेहतरीन समय है कैश फ्लो के लिए। एक नजर हम शनि पे डालते हैं। शनि मेष लग्न वालों के लिए मकर राशि से दशम भाव से भ्रमण कर रहा है और अभी ये वक्री है।
तो ये चूंकि हमारे प्रोफेशन भाव से गुजर रहा है, तो ये यहाँ पर चैलेंजेस लेके आएगा, व्यक्ति की जिम्मेदारियां रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ाएगा, बहुत जी तोड़ के मेहनत करनी पड़ेगी मेष लग्न वालों को जब तक शनि यहाँ बैठा हुआ है। यानी जनवरी 2023 तक आपके ऊपर काम का दबाव बहुत ज्यादा रहेगा, और कई बार लोगों को लगेगा कि हम ये दबाव नहीं सहन कर पा रहे हैं, तो उनके मन में आएगा कि हम अपना नौकरी या धंधा छोड़ दें और कुछ और काम करें। क्योंकि राहु भी प्रथम भाव से गुजर रहा है, तो इस तरह के आपको भ्रम में वो डालेगा। लेकिन यहाँ पे मेरे जो राय रहेगी वो यही होगी कि आप लगे रहें अपने काम में, हौसला बनाए रखें, क्योंकि जब ये शनि यहाँ से निकल के अपनी राशि में जाएगा 11वें भाव में, तो आपको जो अगले 6 महीने में आप मेहनत कर रहे हैं उसके आपको रिवॉर्ड्स मिलना शुरू होंगे। और शनि कभी भी जब तक अथक मेहनत नहीं कराता तब तक कुछ नहीं देता व्यक्ति को। तो ये जनवरी 2023 के बाद आप जो भी काम दिसंबर 2022 तक कर रहे हैं अगले 6 महीने में, उसके आपको नतीजे मिलना शुरू होंगे। इसलिए अपने काम में लगे रहिए, चाहे आपको कितने भी दिक्कतें आए। एक नज़र पंचमेश पे डालते हैं। पंचमेश सूर्य हैं और ये अपने ही भाव से गुजरेंगे 16 सितंबर तक। तो पंचमेश जब भी पंचम से गुजरता है तो ये बहुत अच्छी स्थिति होती है। 16 सितंबर तक सूर्य यहाँ बैठे रहेंगे, उसके बाद अगली राशि में चले जाएंगे, कन्या राशि में, जो कि उसी के मित्र बुध की राशि है। और यहाँ पर भी उसको फिर से आस्पेक्ट मिलेगा गुरु से। तो पंचम भाव का पंचम से जाना 16 सितंबर तक व्यक्ति के लिए स्पेक्यूलेशन के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन समय रहेगा। तो आप लोग जितने भी लोग शेयर बाजार से संबंध हैं, सट्टे बाजार से संबंध रखते हैं, उन सबको ध्यान रखना चाहिए कि सितंबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा देख इस दृष्टि से। और जब 16 सितंबर के बाद सूर्य छठवें भाव में चले जाएंगे तो उनको गुरु का एस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये वाला समय भी अच्छा रहेगा। हालांकि पहले 15 दिनों तक जितना आप कमा सकते हैं उतना आप अगले 15 दिनों में नहीं कमा पाएंगे, लेकिन एक गुरु का एस्पेक्ट बहुत अच्छा कहा जा सकता है जो स्पेक्यूलेशन है उसकी दृष्टि से। जितने भी लोग स्टूडेंट हैं उनके लिए भी सेकेंड हाफ सितंबर का बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु स्वयं ही विद्या के कारक हैं और वो जब पंचमेश को देखेंगे तो विद्या के भाव को बढ़ावा देंगे। इसलिए स्टूडेंट्स के लिए भी 17 से 30 सितंबर का समय बहुत अच्छा रहेगा विद्या ग्रहण की दृष्टि से। एक नजर शुक्र पे डालते हैं। देखिए, शुक्र मेष लग्न वालों के लिए द्वितीय भाव और सप्तम भाव का स्वामी बनता है, मार्केश भी होता है, लेकिन यहाँ पे वो पंचम भाव से गुजरेगा 23 सितंबर तक, और उसके 23 सितंबर के बाद वो भी छठे भाव में मूव कर जाएगा। तो 23 सितंबर तक आप देखेंगे कि आपको, अगर आप फैमिली ओन्ड बिजनेस में हैं तो बहुत अच्छा समय निकलेगा आपका। इसके अलावा अगर आप रोमांटिक रिलेशनशिप्स में एंटर करना चाहते हैं, कुछ जीवन साथी तलाश रहे हैं, इस तरह का कुछ सीन है, तो भी ये समय अच्छा रहेगा। तो 9-10 सितंबर और 23 सितंबर, ये 3 दिन बहुत अच्छे रहेंगे रोमांस की दृष्टि से, क्योंकि 23 सितंबर के बाद शुक्र यहाँ से निकल जाएगा, तो फिर आपके लिए ज्यादा मौके बनेंगे नहीं रोमांस के लिहाज से। 23 सितंबर के बाद जब शुक्र यहाँ मूव कर जाएगा छठे भाव में, तो सप्तम का स्वामी छठे से जाना शुरू हो जाएगा, तो निगेशन हो जाएगा सप्तम भाव का। तो 23 सितंबर तक तो समय रिलेशनशिप की दृष्टि से अच्छा है, लेकिन इसके बाद आपके लिए थोड़ा थोड़ा मुश्किल समय शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वाद विवाद होने की संभावना बनती है। हालांकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है, सप्तम दृष्टि, तो जिस तरह के वाद विवादों का लेवल होगा वो बहुत मैनेजेबल होगा। नहीं तो ऐसी स्थिति में जो झगड़े होते हैं वो बहुत दूर तक जाते हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि आपको बचा के रखेगी। लेकिन रिलेशनशिप्स के लिए जो लास्ट वीक है सितंबर का वो थोड़ा मुश्किल रहेगा मेष लग्न वालों के लिए। एक नज़र बुध पे डालते हैं। बुध छठवें भाव और तीसरे भाव के मालिक होते हैं। छठवें भाव का स्वामी छठवें भाव से ही गुजर रहा है, गुरु की दृष्टि भी पड़ेगी इसके ऊपर। और बुध का शनि के साथ नवपंचम योग बनेगा, जिसे हम अंग्रेजी में ट्राइन बोलते हैं। तो जितने भी लोग शुक्र से रिलेटेड नौकरियों में हैं, यानी कि कोई भी टेलीकॉम रिलेटेड सेक्टर में है या किसी भी तरह के कम्युनिकेशंस से रिलेटेड फील्ड में जॉब करते हैं, चाहे वो पब्लिक रिलेशन है, मार्केटिंग कम्युनिकेशंस है, या प्रिंटिंग में है, पब्लिक स्पीकिंग पब्लिक रिलेशंस में है, राइटिंग या कमीशन बेस्ड जॉब्स में है, जितनी भी चीज़ें बुध दिखाता है, अगर आप उसी से रिलेटेड फील्ड में जॉब करते हैं तो ये सितंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा सर्विस के लिहाज से। शनि गुजर रहा है दशम भाव से, लेकिन ये जो नवपंचम योग बनेगा बुध के साथ, तो जितने भी बुध से रिलेटेड मैंने बिजनेस बताए उनके लिए सितंबर का महीना अच्छा निकलेगा। केतु सप्तम भाव में बैठा हुआ है, ये आपको यहाँ पे आपकी स्पाउस से डिस्कनेक्ट करेगा। चाहे आप मेल हैं फीमेल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका जो भी स्पाउस होगा उसके साथ आप
कटाव महसूस करने लगेंगे, क्योंकि केतु यहाँ पे बैठ के पर्सपेक्टिव बदलने का काम करता है। तो यहाँ पर आपका जो पति या पत्नी है वो स्पिरिचुअल साइड की तरफ जाएंगे, और आपके राहु प्रथम भाव में बैठ के आपको मटेरियलिस्टिक साइड की तरफ खींच रहा है। आपको लुभावने सपने दिखाएगा, आपके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आएंगे, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं दुनिया जीत लूं। ये सब राहु की कारस्तानी होती है, और इसलिए राहु का प्रथम भाव से भ्रमण होना जनरली लोगों के लिए कई बार खतरनाक साबित होता है, क्योंकि वो जो काम कर रहे होते हैं वो कुछ छोड़ के उटपटांग चीजों में लग जाते हैं, जिससे वो अपना नुकसान कर बैठते हैं। राहु यहाँ पे मटेरियलिस्टिक साइड को बहुत बढ़ा देता है, और जितने भी लोग राहु प्रथम भाव में लेकर पैदा हुए होते हैं उनमें बहुत हाई एनर्जी होती है, किसी नियम को नहीं मानते वो, और उनमें हमेशा बहुत ऊर्जा रहती है। वो कैसे भी करके अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, वो उसके लिए कोई भी नियम प्रिंसिपल नहीं देखते, जैसा बन पड़ता है वैसा अपने लक्ष्य की तरफ वो जाने का प्रयत्न करते हैं। तो इसीलिए राहुल प्रथम भाव से जाने के समय व्यक्ति को बहुत अच्छा पॉलिटिशियन भी बनने का मौका मिलता है। यहाँ पर तो वो लग्न से गुजर रहा है, तो यहाँ पे व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए, अपने ख्यालों को रोज मॉनिटर करना चाहिए कि मैं डिविएट तो नहीं कर रहा हूँ, जैसा मैं रेगुलरली सोचता आया हूँ उस तरीके से कुछ अलग की इसकी तो नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि राहु यहाँ पे सत्ता का लालच भी दिलाता है लोगों को। अभी कुछ दिन ऐसे होते हैं हर महीने में जब व्यक्ति को सावधान रहना पड़ता है। तो मेष लग्न वालों के लिए सितंबर के महीने में जो दिन है वो है 2 और 3 सितंबर, 11 और 12 सितंबर, और 25 और 26 सितंबर। तो ये 6 दिनों में आप सावधान रहिए, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना टालिए सितंबर के महीने में। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो अगर आप मंगल या शुक्र से रिलेटेड प्रोफेशंस या बिजनेसेस में हैं, अगर आप स्पेक्यूलेशन में हैं, या बुध से रिलेटेड धंधों में हैं, तो ये महीना आपके लिए अच्छा है। मेहनत तो इन लोगों को भी करनी पड़ेगी, लेकिन इनको कुछ थोड़ा बहुत परिणाम तो मिलेगा, पूरी तरह से गधा मजदूरी नहीं होगी। तो ओवरऑल समरी है मेष लग्न वालों के लिए सितंबर महीने की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।